the campaign trail with the current sitting MP right behind him, Gopal Shetty ji, is Piyush Goyal ji. In front of me. He's ahead of him. But from the camera is right there behind, standing in solid support. So Anna to Goyal ji, to Piyush ji, this is in broad daylight and look at the crowds in front of you. This is not the area. This is just one out of 42 wards that we are visiting today. 1 out of 42 wards has been, you think the response is encouraging for the 47 wards. So the councillor Jayaben is also there on the Rath. But Piyush ji, I wanted to understand, anthropologically, what are you? Based on San Pitroda's interpretations, have you figured out which continent you represent? I am a Maharashtrian. Now the Congress wants to divide this country. They will have to tell me what I am. But I am a blue-blooded Maharashtrian. But some time back, I remember I had asked you कि आप लोकसभा लड़ने वाले हैं. आपने कहा राज्यसभा का टाइम बाकी है, पर आप चुनावी मैदान में उतर गए. You're right in the thick of things. When did you realize that you are going to do this? Well, BJP is a Karyakarta-driven party. They decide what role each one of us has to play. Since at that time no announcement had been made, I had responded to you, and I'm really delighted that Prime Minister Modi has given me this opportunity. It's just fantastic to go to the People's Court and meet the people and get their love and affection on behalf of Mr. Modi. What's encouraging to see is the smiles on the faces of people as they greet you, Piyush ji. But just this morning, Sanjay Raut has called the Prime Minister Ravan and Kans. He said, जैसे रावण और कंस को हटा दिया था, हरा दिया था, वैसे मोदी को हराना है. He is below any response. His comments don't even deserve to be recognized or acknowledged. I think the Congress and the two factions that have joined them, the small splinter group of Sena, led by father-son duo, and with a small faction led by Mr. Sharad Pawar and his daughter, having left their parent parties, almost giving up on all their principles of the party, have realized that they have lost the election badly. Prime Minister Modi is going to win more than 400 seats. The people of India are with Prime Minister Modi. The people love Prime Minister Modi. They trust Prime Minister Modi. But Sanjay Raut says PM Modi is mentally ill. BJP needs to take care of it. Well, I think, as I said, the man is beyond response. His dialogues, his statements are condemnable and below contempt. I think his own persona is such that nobody takes him seriously. I doubt whether his own party also, the splinter group of the Ubata, takes him seriously. Let's talk Maharashtra a bit. In this rally itself, we see the Republican Party of India, we see the Dhanush Ban of the Shiv Sena, we see the Ghadi of the NCP along with the Kamal of the BJP. Many would say it's a very... And there's Manse with us and Rasapa. Yeah, MNS is also there, but it's a very interesting khichdi, if I may say, of parties. Does that actually put a spin on the works as far as Maharashtra is concerned? Experts say these 48 seats could be the game changer or could become the talk of this election. No, these 48 seats are going to overwhelmingly support Prime Minister Modi, and in our 400 plus, there will be at least 42 seats plus coming from Maharashtra. One of the questions that have been repeatedly asked is around Ram Mandir and Ram. Now, is there a reason why this Ram Mandir is being raked again and again? No, it's a matter of pride for 140 crore Indians that after a 500-year struggle, we have finally got the Ram Mandir. The first Ram Navami we celebrated this year after Prabhu Shri Ram came back to his birthplace. You should have seen the enthusiasm across the city. I was in my area and my God, the whole Uttar Mumbai seemed to be out on the streets celebrating with joy Lord Ram's birth. First time after 500 years of his vanvas. But the likes of Ram Gopal Yadav say कि उसका वास्तु खराब है, ये मंदिर ठीक से नहीं बना है. Rahul Gandhi is saying कि हम ordinance लाएंगे, राम मंदिर verdict को overturn कराएंगे. Sam Pitroda says Ram under BJP is hurting democracy, fraternity, liberty and equality.
Well, I think all of these people are out to destroy India's ethos, India's culture, our traditions and our history. It's a shame. I condemn all Ram Gopal Yadav ji or Rahul Gandhi ji or Sam Pitroda's comments. They have also said, based on Navneet Rana, 15 seconds lagenge, they have said that the BJP and the others are only wanting to make it a Hindu-Muslim thing. They want to create a binary. And we are not somebody, we work with everyone, we are secular. Well, I think the Prime Minister has never differentiated based on caste, creed, religion or language or on any other basis. All our programs have been without any discrimination. We have reached out to every single person across the country. So they are not going to fall for this Muslim quota, Muslim reservation thing. What are your thoughts on that? Well, that is an old Congress thinking. They even brought out the Sachar Commission and things like that. We believe in uniting the nation. We believe in Ek Bharat, Shresth Bharat. They want to continue to have Kashmir as a separate part of India. They want to continue to divide people on the basis of caste and creed and religion. They want to divide people based on the color of their skin. They say the PM is the one who stirred the pot after the first 102 seats were polled. And he is the one who sticks up the Congress manifesto and puts the binary. But that is the time the Congress manifesto came. And we read it and we found the divisive nature of their promises. That was the time we had to raise it. People from all walks of life here. So back to the question, 102 seats, phase 1, and then the manifesto and this entire reservation for Muslims was raked up by the PM. We did not make it up. They brought it out in their manifesto. He only warned the people what are the implications of falling for the trap of the Congress manifesto. And he only was informing the people how the Congress plans to divide the nation along religion and caste lines. Piyush, final question, the larger thing, because Rahul Gandhi said that when Dalits set the papers, upper caste will fail, upper caste set the papers, Dalits will fail. Now, you are an academic yourself, you are a rank holder in CA, you are an LLB. This has an implication on all our exams, and perhaps one of the targets is the IIT and the JEE system, because internationally IITs are being targeted, and this is from a sociological point of view, not from merit point of view. What's your thought here, sir? It's condemnable. I just can't understand. If anybody has advisors and mentors like Sam Pitroda, they are bound to talk of this kind of really, you don't know whether to laugh or to cry with these kind of narratives being sought to be said by the Congress and their alliance partners. I think they have become completely rudderless. As I say, ना उनके पास नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है. पूरी तरीके से विपक्ष फेल हो गई है. मुझे लगता है महात्मा गांधी जी की जो इच्छा थी आजादी के बाद कि कांग्रेस पार्टी को अब बंद कर देना चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में लोग अपने आप अपने काम में लगे, शायद राहुल गांधी जी ने उस बात को मन में ले लिया है और तय किया है कि वो कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव के बाद खत्म ही कर देंगे. और क्योंकि कुछ छोटी पार्टीज, स्प्लिंटर ग्रुप्स, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी के भी उसमें विलीन होना चाहते हैं, तो वो भी उन्हीं के साथ रिटायर हो जाए. My final question, मलाड वेस्ट की गलियों में सर थोड़ा सा ऐसे कि 400 पार होगा? 110% 400 पार होगा, जो प्रदूषण सब जगह दिख रहा है. और आप देखिए कहाँ तक जा रही है. एक वार्ड है, एक और पीछे भी देखिए, उतनी लंबी पीछे भी है. ये प्यार प्रधानमंत्री मोदी जी के काम पर, ये आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर, उनके भविष्य में भारत को एक विकसित भारत बनाने. इसके सामने 400 पार तो अवश्य होगा.
नहीं ये मत दिखा। विकास की गारंटी नरेंद्र मोदी। ये भी दिखा रहे हैं कि 10 लाख प्लस वोट हो गए पीयूष जी आपके। नहीं, ये किसी ने रास्ते में दिया। 10 लाख प्लस वोट हो गए में आते ही बोरीवली में 1000 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का संकल्प करके उसका काम शुरू करने वाले नरेंद्र। 400 पार आप कह रहे होंगे और इस भीड़ की वजह से आप कह रहे हैं। भीड़ की वजह से नहीं, यही मैं सब जगह देख रहा हूँ, जो प्यार जो सम्मान आज भारत की जनता दे रही है हम सभी उम्मीदवारों को, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्यार और सम्मान है। और मेरा पक्का विश्वास है कि 400 से अधिक सीटों पर हम विजयी होंगे, भारी मतों से विजयी होंगे और देश को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाएंगे, विकसित बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, देश के घर घर तक विकास पहुंचाएंगे, समावेशी विकास होगा और विश्व में भारत का नाम गौरव से और बढ़ेगा। 140 करोड़ भारतवासी 56 इंच की छाती से इस देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनेंगे। Thank you so much, Piyush ji. We've often had sit-down conversations with him, walk the talks with him, but this is on the roll while he's on the campaign trail. Been an interesting conversation with so much of support and outpouring in the Mumbai North constituency for him. This is Anand Narasimhan for CNN News 18. It's been a busy morning for the Pune candidate of the Congress party here. We're going to be seeing a triangular fight as far as Pune constituency is concerned. I'm joined by the candidate himself, Mr. Ravindra Dhangekar. Sir, thank you so much हमसे बात करने के लिए CNN News 18 पे। सुबह सुबह से आप लगे हुए हैं, सुबह प्रचार हो रहा है, शाम को प्रचार हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, लेकिन प्रचार में कोई कमी नहीं है। नहीं, तापमान बढ़ गया तो सब पार्टी के लोग हैं, महाविकास आघाड़ी के और इंडिया फ्रंट के सब कार्यकर्ते और नेतागण है और वो सभी एक इकट्ठा होकर हम सब प्रचार कर रहे हैं। अब सब लोग को मिल रहे हैं। अभी टेम्परेचर हो गया लेकिन कार्यकर्ता का टेम्परेचर बढ़ गया है, इसके वजह से हमारा प्रचार यंत्रणा अच्छा चल रही है। कल राहुल गांधी भी आएंगे यहाँ पे प्रचार के लिए, नरेंद्र मोदी भी आए थे, काफ़ी दिग्गज आ रहे हैं। किस पार्टी को उससे फ़ायदा होगा आपको लगता है? बीजेपी को लगता है कि मोदी वेव जो है वो अभी भी है, बीजेपी को उससे फ़ायदा ही होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, आपको लगता है ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राहुल गांधी साहब कल आने वाले हैं और वो कि देश में सभी जगह पे जाके आए, सभी लोग को बात करके देश में क्या चल रहा है, देश में क्या स्थिति है, वो सब अंदाज लेके कल बात करेंगे। वो सब देशवासियों के सामने पुणे की बात नहीं बोलेंगे, वो देश की बात बोलेंगे। और अभी जो राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं वो देश के सभी नागरिक के हित की बात कर रहे हैं और कल वो सभी जनता की हित की बात करेंगे। सर, पुणे की बात करें तो पुणे के इश्यूज़ क्या हैं? बहुत बार ऐसे होता है कि जनरल इलेक्शंस की बात होती है तो देश की बात होती है, लेकिन कंस्टिट्यूएंसी की, उस स्टेट की बात नहीं होती है। पुणे के भी ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी बात ही नहीं हो रही है, ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है। नहीं, मैं राहुल गांधी पुणे की बात नहीं करेंगे, देश की बात करेंगे, लेकिन हम सब नेतागण पुणे के, वो पुणे की बात करेंगे। और पुणे में अपने को मालूम है कितना इशू है, टॉपिक का है, नदी सुधार योजना है, पर्यावरण का है, किसानों का है, युवकों का है, स्कूल का है, ये सब पुणे का प्रॉब्लम तो हम सब बात करेंगे उसके ऊपर, लेकिन राहुल गांधी देश की बात करेंगे कल। अभी ये जो गठ बन गए हैं, उद्धव ठाकरे जी का फैक्शन है, शरद पवार जी का फैक्शन है, कुछ पार्टीज इस तरफ हैं, कुछ पार्टीज इस तरफ हैं, इसके वजह से आपको लगता है कन्फ्यूजन होती है वोटर्स में? क्या कांग्रेस को इसका कोई फ़ायदा होगा या फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे आपको लगता है? नहीं, अभी तो मोदी साहब जो बात कर रहे हैं 10 साल में सबने सुना है, लेकिन जो बात किया वो कुछ जनता को मिला नहीं, आपको भी मालूम है। इसलिए जनता अभी सोचेंगी किसको वोट करने का। सर, आप 2 साल पहले आपने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था शायद। बीजेपी माना जाता था कस्बा उनका एरिया है, उनका गढ़ है, वो आपने गिरा दिया। आपको लगता है वो आपका जो ट्रेजेक्ट्री है, जो कांग्रेस का ट्रेजेक्ट्री है पुणे में, वो कंटिन्यू रहेगा इस इलेक्शन में भी? पुणे तो कांग्रेस का बाले किले था, लेकिन बीच में जो कुछ हो गया उसमें हमारा जो उम्मीदवार है वो गिर गया। लेकिन अभी पुणे लोग को सबको मालूम है अभी क्या होने वाला है और पुणे के हित की बात कांग्रेस करेंगी, महाविकास आघाड़ी करेंगी, इंडिया फ्रंट के सब लोग करेंगे, वो सबको मालूम गिर गया है। अभी 10 साल में एक लोग ने क्या किया ये बात करना चाहिए
आगे करने का है, वो बात नहीं करनी चाहिए। हम तो आप गए पीछे साल की भी बात करें, आगे की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये पूना वासियों को 70 साल में सब कुछ दिया है, और बीच में जो होगा वो बात छोड़ दो, लेकिन सभी जनता को विश्वास है वो पूना के लोग कांग्रेस पार्टी के पीछे रहेंगे। बट कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये भी कुछ लोग कहते हैं कि आप उद्धव ठाकरे जी के साथ चले गए, शिवसेना के बारे में कांग्रेस की जो पहले भूमिका रही है या जो विचार रहे हैं वो आपने छोड़ दिया और अब आपने उनके साथ अलायंस कर लिया, तो शायद इसका आपको फायदा नहीं होगा, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। आपको लगता है ऐसे? अभी तो बीजेपी में मुक्ता सैयद के साथ से भी युति किया था कश्मीर में, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। सब लोग एक विचारधारा में आए, देशवासियों के साथ एक गट्टा है, देश की बात के वास्ते आए ले, इसके वजह से सब एक गट्टा देशभक्ति करने वाले सब लोग एक गट्टा आके अभी चुनाव लड़ते हैं। सर, महाविकास आघाड़ी के लिए आप कितना नंबर देंगे? महाराष्ट्र में कितनी सीटें आएंगी आपको लगता है इस बार? सबसे ज्यादा देश में आएंगे, महाराष्ट्र में आएंगे। अलायंस के लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए महाविकास आपको लगता है पूरी सीटें आपकी होंगी इस बार? 101% देशवासियों में इंडिया फ्रंट के सब लोग चुन के आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। That was the Congress's candidate. He's been an MLA here. He is fighting on a Congress ticket this time around. Does his prediction come true? We'll of course find out on June 4th. सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे और काम पे होगा? बिल्कुल, ये देश की इलेक्शन है, देश की जनता ये जानती है कि ये इलेक्शन में देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे ये निश्चित होने वाला है। तो मुझे लगता है कि यही पे इसी मुद्दे पे सभी पूरे देश में चुनाव लड़ी जा रही है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से पुणे में भी वही चल रहा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पुणे वाले ने निश्चय किया है, संकल्प किया है, और वो बिल्कुल पूरा होगा। सर, आपके सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं वो भी पुणे के रह चुके हैं। 2 साल पहले उन्होंने ऐसा काम किया बीजेपी के खिलाफ जो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उनको लगता है, हमारी बात हुई उनसे, उनको लगता है कि वो फिर से ये कमाल कर दिखाएंगे। आपको लगता है? देखिए, एक असेंबली की बाई इलेक्शन और पूरे देश की अभी ये लोकसभा की चुनाव, इसमें बहुत अंतर होता है, उसके रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई महत्व रहेगा। वो क्या कहते, इससे ज्यादा लोग क्या कहते, ये ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि लोग ये कहते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। सर, आपको लगता है वोटर्स में कुछ कंफ्यूजन है क्योंकि गुट बढ़ गए हैं, फैमिलीज में स्प्लिट हो गया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारे अलायंस के सभी पार्टी के लोग हैं, वो अजीत दादा हो या राज साहब ठाकरे हो या शिंदे साहब हो, इन्होंने स्पष्ट किया कि देश का नेतृत्व मोदी जी कर सकते हैं, देश का भविष्य जो है वो मोदी जी के हाथों में ही सुरक्षित रह सकता है। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर है, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, न कार्यकर्ताओं में न लोगों में है। सर, मुद्दे जो हैं इलेक्शन के वो पुणे के होंगे, स्टेट के होंगे या देश के होंगे? स्वाभाविक रूप से दोनों ही होंगे। आखिर में लोकल लेवल के भी इश्यूज होते हैं, उस पर भी हमें काम करना है। और सेंट्रल पे जो अभी इलेक्शन तो है लोकसभा की, तो स्वाभाविक रूप से केंद्र के जो कुछ प्रश्न हैं, केंद्र से कुछ काम पुणे के लिए करने, तो वो भी इसमें शामिल है। सर, आपके जो विरोधी पक्ष हैं या जो एनालिस्ट हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र ऐसी स्टेट है जहां मामला फंस सकता है, बीजेपी के रुक जाएंगे शायद, या महायुति के 15 सीटों में रुक जाएंगे, 20 मैक्सिमम, उससे ऊपर आएंगे नहीं। आपको क्या लगता है, आपका नंबर क्या होगा? कौन कहता है? मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मैं फिर एक बार कहूंगा कि लोग क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है, इससे ज्यादा चित्र जो है कि क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि हम 42 थे, 45 तक जाएंगे। 45 नंबर है आपका सर? बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। दैट वाज द बीजेपी पुणे कैंडिडेट जॉइनिंग अस हियर। धरतीपुत्र माँ समलेश्वरी का आशीर्वाद लेके निकला है। शुभ दिन। देखिए, आज हम सभी के लिए एक अच्छा दिन है। माँ का आशीर्वाद लेके हम मोदी जी की विजय रथ को उड़ीसा में घुमाएंगे। इस बार उड़ीसा में मोदी जी के लिए अपार श्रद्धा समर्थन है। मैं भी जीतूंगा और 21 का 21 लोकसभा हम यहीं से जीतेंगे और मोदी जी की नेतृत्व में उड़ीसा में
उड़ीसा को बड़ा बनाने के लिए, एक नंबर राज्य बनाने के लिए माँ का और महाप्रभु के आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मोदीमय उड़ीसा हो गया है। उड़ीसा के संबलपुर में चुनावी प्रचार की एक शाम बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको देख रहे हैं संबलपुरी चीजें ही यहाँ पर काफी चमक रही हैं, ये कुर्ता, ये धोती, ये शॉल, क्या कहना चाहेंगे? धरतीपुत्र ने अपना नहीं, कभी कभी जब विशेष आयोजन होता है, पूजा होता है या कोई विशेष दिन बनता है हम लोगों की समाज में, हम लोग यूजुअली तो उड़िया लोग धोती ही पहनते हैं, कुर्ता ही पहनते हैं। और संबलपुरी कुर्ता तो अपने आप में एक अच्छा दिखता भी है लोगों को, मेरे को तो व्यक्तिगत रूप में अच्छा लगता है। आपने स्थानीयता का मुद्दा भी उठाया है। आपने रायगढ़ से आप पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, मुझे याद है आप 2004 में भी जीत कराए थे लोकसभा। तब देवगढ़ था, वो भी हिस्सा है, मुझे लगता है इसी लोकसभा का हिस्सा है। तो धर्मेंद्र जी, वो हिस्सा तो आपका, आप तो संबलपुर के हैं ही, लेकिन जो लोग यहाँ आपसे लड़ने आ रहे हैं वो 300-300 किलोमीटर दूर से आपसे लड़ने आ रहे हैं, क्या कारण है कि इतने कद्दावर नेता को पूरी का पूरा सिस्टम लगा हुआ है हराने के लिए? नहीं, देखो, राजनीति में प्रतिद्वंदिता होना अच्छी बात है। कोई भी चीज आसानी से प्रजातंत्र में होती नहीं है। और मैं मानता हूँ इस लोकसभा चुनाव में प्रसंग कौन प्रत्याशी है ये नहीं है। मैं भी खुद को, मैं तो एक उसकी कैटलिस्ट मानता हूँ, एक माध्यम मानता हूँ। मैं एक छोटी सी इस बड़े सेतु में खुद को गिलहरी मानता हूँ। मुद्दा है नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, मुद्दा है भारत को विकसित बनाने का, मुद्दा है उड़ीसा को उसकी हक दिलाने का। ये सारे में लोकसभा चुनाव में किसी की मन में कोई कंफ्यूजन नहीं कि नतीजा किस ओर बढ़ रहा है। नतीजा भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा है, देश भर में बढ़ रहा है। उड़ीसा में तो और एक कदम हम लोग आगे हैं। उड़ीसा की लोकसभा चुनाव एक प्रकार से तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में चुनाव की नतीजा जाएगा। बड़ा जनाधार बन चुका है, मोदी जी की विश्वसनीयता है। पिछली बार 8 जीते थे, इस बार हम लोग उम्मीद करें कि इस बार उल्टा होने वाला। इस बार तो मैं एक तरफा की रिजल्ट की ओर अपेक्षा कर रहा हूँ। हम 21 की 21 लोकसभा जीतने की स्थिति में आ चुके हैं। जिस प्रकार से पिछले बार चुनाव में पार्टी एक बड़ी ताकत करके उभरा, बड़ी जंप हुई। 22% से जब हम 38% लोकसभा में वोट जाते हैं तो 16% की ग्रोथ होती है, लगभग 22-16 और जोड़ के 38 हुआ। लेकिन इस बार ये 45 तक जाएगा। आपके जो प्रतिद्वंद्वी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, बॉबी दास जी, प्रवीर दास जी, नंबर 2 माने जाते हैं, संगठन महामंत्री हैं बीजेडी के। कैंपेन अभी तक तो बहुत ज्यादा किया नहीं है, लेकिन एक लोगों को है कि पूरा का पूरा प्रशासन यहाँ पर काफी जोर से चुनावी प्रक्रिया में देखिए, लोग प्रभावित कर सकता है। देखो, ऐसे जब जिन के पास एक सरकार रहती है उनकी ताकत, वो सरकारी ताकत दिखाने का कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी चीज एक एक्सट्रीम एंड तक नहीं जाती है। इंडियन डेमोक्रेसी परिपक्व डेमोक्रेसी है, उसमें लोग समझते हैं क्या करना क्या नहीं करना। मैं फिर लोकसभा चुनाव में व्यक्ति प्रसंग नहीं है। हाँ ठीक है, प्रत्याशी का अपना एक दायित्व रहता है, अपना एक भूमिका, और उसमें मेरे सामने जो प्रत्याशी है वो उनकी पार्टी का बड़ा नेता है, ठीक है। धर्मेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुंचे, अमित शाह यहाँ पर आए, दोनों पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उनको यहाँ आना दिखा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, संबलपुर भी उनके लिए काफी कीमती है। नहीं, पूरा राज्य इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में है। यहाँ तो अभी चुनाव प्रबंधन देखने के लिए स्वयं भूपेंद्र जी आ गए हैं, विप्लव देव जी कहाँ बैठे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आके कहाँ बैठे हैं। ये सब मुख्यमंत्री रहे हमारी व्यवस्था में। कभी फग्गन सिंह कुलस्ते भी आए हैं, मैंने अखबार में पढ़ा। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में उड़ीसा की विकास है, उड़ीसा को देश में एक नंबर राज्य बनाने की प्रतिबद्धता है, उड़ीसा की अस्मिता को सुरक्षित रखना। एक राजनीतिक पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना जिम्मेवारी माना, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को उठाया। प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे की इकाई के कार्यकर्ता हम एकमुश्त है, और ये सब जय पराजय के ध्यान में नहीं करते हैं। हमारे प्रतिबद्धता है कि इस विषय को लिए लड़ाई करना, हम लड़ रहे हैं। अमेठी का ऐलान हो गया है, अब युवराज वायनाड के सांसद अमेठी जा रहे हैं लड़ने के लिए। बड़े दिन
छुपन छुपाई खेली उन्होंने। जो पिछले बार उनकी हसरत हुई थी, जो उनको सामना करना पड़ा, इस बार भी वही होने वाला है। क्यों लोग उनको वोट दें? क्यों? कि हम राजे हैं। ये जमाना चला गया है। लोगों का जो सेवा करेगा वही रहेगा। ये जो लोग देश को लंबे समय तक गुमराह और बर्बाद करने वाले लोग, ये अमेठी को अपनी जागीर मानते हैं। जागीरदारी चली गई है, प्रजातंत्र आ गया है, लोग जिनको चाहेंगे वही जीतेगा। आखिरी सवाल, मोदी गारंटी का कितना असर हो रहा है? 100% है। ये तो विश्वास का ही चुनाव है, भरोसा का ही चुनाव है। उसको राजनीतिक शब्दावली में हमने गारंटी कह दिया है। ये भरोसा और विश्वास की, श्रद्धा की चुनाव है। इसकी नाम है मोदी गारंटी। गारंटी की गारंटी, मोदी गारंटी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।